تو دیکھو ہم کتاب الحضر والاباحہ پڑھ رہے تھے، یعنی وہ کام ہے جو ایک مرد عورت کے لیے ممنوع ہے، یا وہ کام ہے جو ایک عورت کے لیے اور مرد کے لیے کیا ہے کمبائن ممنوع ہے، یا ان میں سے فردن ممنوع ہے، تو اس کا بیان ہے۔ ہم نے کہ یہ پڑھا تھا کہ ریشم جو ہے یہ تو مردوں کے لیے جو ہے وہ حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ سونا اور چاندی کا استعمال مردوں کے لیے یہ بھی کیا ہے ناجائز ہے، لیکن سونا جو ہے وہ کیا ہے، اگر وہ سونا تو مطلقاً حرام ہے نا، اور ریشم میں جو ہے مردوں کا اگر صرف یعنی یہ آستین کے یہ کف جو ہوتے ہیں وہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے، یا جو ہے یہ کالر پر معمولی سے ایک پٹی باندھی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح سونا جو ہے مطلقاً حرامیہ ہے۔ اب چاندی کے متعلق میں نے بتا دیا تھا کہ ایک مثقال یعنی 4 گرام کی بقدر مردوں کے لیے جائز ہے جب اس کی انگوٹھی بنائی جائے، سمجھا گیا؟ اگر اس کے علاوہ اور کوئی چیز بنا رہی یعنی چین وغیرہ تو پھر جو ہے یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا بات ہو۔ یہاں پر آپ لوگ یہ بات بھی جان لیں کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے یہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا یہ کب پرسوں، کہ یعنی انگوٹھی چاندی اور سونے کے علاوہ اور دانت کی انگوٹھی جو ہے یعنی پیتل ہو گیا، یہ آرٹیفیشل جویلری جس کو کہا جاتا ہے، جس میں رنگ وغیرہ جو ہے ہوتے ہیں عمومی طور پر عورتیں زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ، تو یہ دانتی یہ یعنی چاندی اور سونے کے علاوہ دانتیں یہ مردوں کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ وہ تو چاندی کے علاوہ باقی کسی چیز کا بھی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، نہ سونے کی نہ اور دانتوں کا، لیکن عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دانت کا انگوٹھی پہننا تو جائز نہیں ہے۔ یہ فقہائے متاخرین فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، صحیح ہو گیا۔ اور البتہ کیا ہے اور آرٹیفیشل جویلری وغیرہ استعمال کر سکتے، لیکن انگوٹھی استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کل عمومی طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو اسی وجہ سے متقدمین نے تو یہی مطلقاً عدم جواز کا فتویٰ دیا تھا، پھر متاخرین نے آ کر جو ہے مکروہ کا فتویٰ دے دیا، کیونکہ عموم بلوا کی وجہ سے جو ہے ہر عورت جو ہے یہ پہنتی ہے الا ماشاء اللہ، تو کیا کر دیا اس نے مکروہ کا فتویٰ دیا۔ لیکن آج کل جو ہے ایک ہے مفتی شاد محمد شاد، یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے جوان مفتی ہے، اچھا خاصا کیا کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہے، تو اب ان کا میں ایک فتویٰ دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے جائز کا لکھا ہے، سمجھا گیا، یعنی مکروہ کا بھی نہیں لکھا ہے، بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ استعمال کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اگر کوئی عورت جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے کہ وہ جویلری آرٹیفیشل جو ہے انگوٹھی وغیرہ نہ پہن لے تو نہ پہن لے، لیکن اگر کوئی پہننا چاہے تو پھر یہ مکروہ تنزیہی کا حکم میں آئے گا، لیکن کوئی حرام یا مکروہ تحریمی کا حکم میں نہیں آئے گا۔ دیکھو ولا باس بالخاتم والمنطقة وحلیة السیف من الفضة، مردوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھا بالخاتم انگوٹھی کا، والمنطقة اور پٹکے، یہ کمر پر جو ہے کمر بند جو ہے وہ لٹکاتے وہ کہتے باندھتے ہیں، اس کو منطقہ کہا جاتا ہے۔ وحلیة السیف من الفضة، اور اس طرح جو ہے کس چیز کا تلوار کا زیور، سمجھے تلوار کا جو کیا ہوتا ہے وہ اس کو تلوار کو یہ چاندی وغیرہ سے مزین کرتے ہیں، من الفضة چاندی سے، یہ جو ہے مردوں کے لیے جائز ہے۔ ويجوز للناس التحلي بالذهب والفضة، اور جائز عورتوں کے لیے زیور پہننا سونے اور چاندی کا۔ ويكره، آگے فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کے یہ بھی مرد کے حکم میں ہوتا ہے، اس کے بچے کے لیے جو ہے اس کا سونا اور اس طرح جو ہے ریشم کا پہنانا، سمجھے یہ بھی کیا ہوگا مکروہ ہوگا۔ اور اس یعنی چونکہ چھوٹے بچے جو ہے وہ تو گناہگار نہیں ہوتے نا، تو اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں نہ پہنایا کرے۔ وَيَكْرَهُ أَن يُلْبِسَ، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا جب ان کے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے اس میں جو ہے وہ کڑی سے ہوتے تھے سونے کے، جب چاندی کے سونے کی کڑے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حرمت نازل ہوئی مردوں کے متعلق، وہ چھوٹے بچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کرے ان سے نکال کر جو ہے پہن دیا،
پھر یہ دونوں بچے جو ہے اپنی ماں کے پاس جو ہے وہ رونے لگے، روتی روتی جو ہے وہ چلے گئے. تو وہ ان کی ماں نے بھی ان کو، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تو انہوں نے بھی مارا کہ تم لوگ جو ہے ایک حرام چیز کے بارے میں رو رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پھول کے جو ہے وہ کڑے باندھ دیتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے لیے بھی ذهب اور حریر کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ولا يجوز الاكل والشرب والادهان. آگے فرماتے ہیں کہ ہاں اگر سونے اور چاندی کا جو ہے مردوں کے لیے جو ہے ناجائز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن کیا کرنا، سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنا، یا اس کا تیل دانہ جو ہوتا ہے یا خوشبو دانہ ہو جاتا ہے، یعنی پرفیوم کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ سونے کا یا چاندی کا ہو، یا جو ہے ایک گلاس جو ہے وہ سونے یا چاندی کو، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے دونوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک تکبرانہ انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکبرانہ انداز سے منع فرمایا. ولا يجوز الاكل والشرب، اور جائز نہیں ہے کھانا پینا، والشرب یعنی کھانا اور شرب اور پینا، والادهان اور تیل لگانا، والتطیب اور کیا کرنا، اور خوشبو استعمال کا، فی آنیت الذهب والفضة سونا اور چاندی کے برتنوں میں، وللرجال والنساء کس چیز مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. آگے فرماتے ہیں جی جو پیارے پیارے برتن جو ہوتے ہیں اس کے استعمال میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. جیسے کیا ہو گیا، شیشے کا برتن ہو گیا، اور یا جو ہے ایک چمکدار مدنی بلور جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے یعنی جوہر کا موتی کا ایک برتن ہوتا ہے چمکدار سا، وہ ہو گیا، یا ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر سے بنا ہوا جو ہے وہ. عرض یہ ہے کہ جو پیارے پیارے برتن ہوتے ہیں اس کا استعمال کرنے کا عدم جواز کوئی نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا بھی استعمال کرنا مکروہ ہے. لیکن ہم جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تفاخر نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، تو اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا کوئی مکروہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے. ولا باس باستعمال آنیت الزجاج، اور کوئی حج نہیں ہے کیا کرنا شیشے کے برتن کے استعمال میں، والرصاص اور رنگ یعنی دھات کے استعمال میں، والبلور کس چیز کی یعنی بلور کا استعمال کا. وہ تو میں نے بتا دیا کہ ایک جوہر کا بنا ہوا ایک اور برتن ہوتا ہے. والعقیق، اور عقیق پتھر سے بنا ہوا کیا برتن کے استعمال میں کوئی بھی عدم جواز نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ یعنی وہ برتن جس پر چاندی کا چڑھاؤ ہوا ہو یا سونے کا چڑھاؤ ہوا ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خالص چاندی کا برتن نہ ہو، صحیح ہو گیا، بلکہ اس کی کناروں پر جو ہے چاندی کی چڑھاٹ کی ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہے. لیکن جہاں پر چاندی لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ کیا ہے وہاں سے پینے اور پانی پینے میں جو ہے پرہیز کرے. یا جو ایک تکیہ لگا ہو اس کے ایک طرف سے جو ہے وہ ریشم کا کپڑا ہو تو اس ریشم کے کپڑے کو چھوڑ کر باقی تکیے پر تکیہ لگا لے، ٹیک لگا لے، اس کو چھوڑ لے. اور اس کے دلیل جو ہے میرے ذہن میں بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتھر تھا، ایک پتھر کا برتن تھا جو 3-4 لوگ جو ہے اس کو اٹھاتے، اتنا باری برتن تھا. تو جب وہ ٹوٹ گئی تھی تو اس پر صحابہ کرام نے جو ہے چاندی کے ساتھ چاندی کے پتھرے لگا کر اس کو جوڑ دیا تھا. تو اس حدیث سے بھی ثابت معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح برتن جائز جس پر چاندی کا چڑھاؤ ہو. سمجھا گیا. وَيَجُوزُ الشُّرْبُ، اب جائز ہے پینا، فی الاناء المفضضہ، مفضضہ اس برتن کو کہا جاتا ہے جس پر چاندی چڑھی ہوئی ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، والرکوب علی السرج المفضہ، اور ایسے زین پر سوار ہونا جائز ہے جو مفضض ہو، میں نے مطلب جس پر چاندی کا چڑھاؤ ہو. والجلوس علی السریر المفضض، اور اس طرح ایسے کس چیز پر بیٹھنا جائز ہے، ایسے چرپائی پر بھی بیٹھنا جائز ہے جو مفضض ہو، جس پر کیا ہو چاندی کی چڑھائی ہو گئی ہو. آگے فرماتے ہیں وَيَكْرُهُ، آگے جو ہے ایک اور متفرق مسائل ہے نا، حد اور اباحت میں ہمیشہ متفرق مسائل ہی ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ قرآن میں نقطے لگانا، کیا کہ نقطے لگانا جو ہے یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یعنی ہر 10 آیات کے بعد آپ ایک نقطہ لگا لیں یا پھر ایک رکوع جو ہے اپنے لیے مقرر کرے. سمجھ آ گئے. تو یہ کیا ہے جو ہے یہ ساری کیا ہے مکروہ ہے. لیکن اب یہاں پر سوال ہوتا ہے تو اعراب لگانا، یہ حجاج بن یوسف ثقفی جو کہ بہت بڑے ظالم ہے، اس کا کارنامہ ہے یہ کہ ہمارے عجمی لوگوں کے لیے اس نے اعراب لگایا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دے، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. تو کہتے ہیں یہ جو سوال ہوتا ہے تو اعراب بھی تو قرآن پر نہیں تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ بھی تو ایک تحریف ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے، ایک منٹ صبر.
तालिबात आप लोग 1 मिनट सब्र कर ले, मैं ये कुछ व्हाट्सएप पर भेजती हूँ, वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंतज़ार के लिए माज़रत। तो देखो, अब यानी सवाल होता है कि एराब भी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं था ना, तो फिर जो है वहाँ पर वो क्यों ज़रा है? तो चूँकि इसका जवाब ये है कि क्या है? तो इसका जवाब ये है कि चूंकि वो आजमी की ज़रूरत थी, आजमी जो है वो क्या होते हैं, उसको एराब और नुक्ते की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से जो है वो क्या करते हैं, उसके लिए लगाया। और दूसरा ये चीज़ जो ममानियत आई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को दूसरे गैर कुरान के साथ ना मिलाया करें, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ खास था, क्योंकि खदशा था कि ऐसा ना हो कि एक सहाबा कराम जो है गैर कुरान को कुरान समझकर कुरान में दखल करे। तो इसी वजह से देखो, वयकरो ताशीरो और मकरू है, हर निशाना लगाना फिल मुसहफ़, अच्छा हर 10 आयत के बाद निशाना लगाना फिल मुसहफ़ कुरान में, वन्नुक़त और नुक्ता लगाना। वला बास बितहलियतिल मुसहफ़। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि कुरान को जो है उसका क्या करना, कुरान पर सोने और चांदी का कुरान को सोने और चांदी से आरास्ता करना, ये जो है ये चूंकि कुरान की ताज़ीम आते हैं ना, तो ये भी क्या है, जायज़ है, बल्कि अच्छी बात है। इस तरह मस्जिद को जो है सोने और चांदी के साथ मुज़य्यन करना, तो ये भी जो है वो क्या जाए, बशर्ते कि ये माल जो है वो मुतवल्ली क्या है, मस्जिद का माल ना हो बल्कि किसी और का माल हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। देखो, वला बअस बितहलियतिल मुसहफ़, और कोई हर्ज नहीं कुरान को आरास्ता करने में, वनक्शिल मस्जिद, और मस्जिद को मुनक्किश करने, वज़ख़रफ़तिही बिमाइ ज़हब, और उसको मुज़य्यन करना सोने के पानी के साथ, कोई भी हर्ज नहीं है। वयकरहु इस्तिख़दामुल ख़िस्यान, आगे फरमाते हैं, खसी उस शख्स को कहा जाता है हिजड़े को, जो पोते अपने निकाले, समझे, जो अपने क्या ज़कर का जो है पोते निकाले, तो कहते हैं कि उससे खिदमत लेना मकरूह है। एक तो इसी वजह से कि वो लोगों का ऐसा ना हो कि रुखबत होने लगे, आमदनी का जरिया बना ले, वो दूसरे लोग भी जो है वो अपने पोते निकालने लगे, खुद को खस्सी करने लगे, ताकि लोग हमें भी जो है रोजगार पर लग ले। तो इसी वजह से दूसरा ये कि उसको खिदमत देने में ऐसा ना हो कि शहवत जो है उबर आ जाए, तो शहवत का अंदेजा है ना, तो इसी वजह से उसका भी क्या होगा, मकरूह होगा। वयकरो इस्तिखदामुल खिस्यान, और मकरूह खसी से खिदमत लेना, खसी से खिदमत लेना भी मकरूह है। वला बास बिखसाइल बहामी व इंजालुल हमीर अला, आगे फरमाते हैं कि हो चौपाइयों को खसी करने में, यानी उसके पोते निकालने में कोई भी क्या है, हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जिस जानवर का खसी कर ले, तो उस वो खूब मोटा ताज़ा हो जाता है खसी करने के, तो इस वजह से ये भी फायदा है। अब दूसरा है, जिसके पोते निकाले, तो इसकी जो है वो उसका जो शर का मादा होता है ना, जानवर को इंसान पर हमला करते हैं, तो वो जो है वो खत्म हो जाता है, तो इसी वजह से इसका भी कोई भी मकरूह नहीं होगा। और इसी तरह क्या करना है, यानी घोड़े घोड़े और गद्दे की मिलाप करना, आपस में उसके साथ जुफ्ती करना, तो ये भी जैसे तो इसमें जो है फिर खच्चर पैदा होता है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर बैठे हैं, तो इसे मालूम होता है कि खच्चर की जुफ्ती के साथ जो है जो काम हो जाए, तो वो भी क्या होता है, उसमें भी कोई हज नहीं है। वला बास भी खसवाइल बहाई में, और कोई हज नहीं सिपाहियों को खसी करने में, व इंजा इल हमीर अलल खैल, और गद्दों को घोड़ी पर चढ़ाने में कोई भी हर्ज नहीं है। यानी मर्द जो है वो क्या है, मुज़क्कर जो है वो गद्दा हो, और मुअन्नस जो है वो क्या हो। हम्म
वही कहे वयजूज़ अन युक़बल फ़िल हदियति वल इज़्न क़ौल अल अब्द वस्सबी। हमने पीछे ये बात पढ़ी थी कि गुलाम और ये जो है अहलियत नहीं रखती तिजारत वगैरह की ना। तो अब सवाल ये होते हैं कि अगर कोई बच्चे जो है किसी के पास हदिया लेकर आए, गिफ्ट वगैरह लेकर आए, गुलाम लेकर आए और ये कहते कि ये मेरे बाबा ने या मेरे आका ने आपको भेजा है, तो आया इस कबूलियत को, इस इरसाल को, इस सफिरियत को जो है कबूल करना होगा या नहीं होगा? तो कहते हैं कि जी हाँ, कबूल करना होगा, क्योंकि एक मामूली सी जो है क्या होता है ये एक उमूमी तौर पर और है ना आदत है, तो इसी वजह से उसको कबूल करना वो है। वयजूज़ और जायज़ है अयुक़बल फ़िल हदियति वल इज़्न क़ौल अल अब्द वस्सबी कि कबूल किया जाए हदिया और इजाज़त में गुलाम और बच्चे। जैसे किसी के दरवाजे पर दस्तक मारे और कहे कि बच्चे ने कहा कि कौन है, उसने कहा फला हूँ, उसने जो है इजाज़त दे दी, तो ये भी जो है वो क्या हो जाता है, जायज़ हो जाता है। वयजूज़ और जायज़ है युक़बला कि हो कबूल किया जाए फ़िल हदियति हदिये में वल इज़्न और इजाज़त में क़ौल अल अब्द वस्सबी गुलाम और बच्चे का कौल। आगे क्या फरमाते हैं कि एक होते हैं मुआमिलात, एक होते हैं इबादत यानी दियानात। दियानात का ताल्लुक जाहिर सी बात है यानी रोजा हो गया, हज हो गया वगैरह वगैरह। दूसरा होते हैं मुआमिलात, मुआमिलात जो है बया हो गए, तिजारत वगैरह हो गया ना। तो कहते हैं कि फासिक को, एक फाजिर जो है, फासिक को जो है मुआमिलात में तो काबिल कबूल होगा, लेकिन दियानात में काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि मुआमिलात जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान होते हैं। अब वो अमूमी तौर पर मुआमिलात में मुखातिब जो होते हैं वो तो हर जो है आदिल तो नहीं हो सकता ना, तो फिर जो है ये मुआमिलात का दायरा जो है ये तंग हो जाएगा, क्या हो जाता है, लोगों पर हर्ज लाजिम आएगा। तो इसी वजह से जो है मुआमिलात में इसकी कबूलियत, इसके कौल का कबूलियत का रुख्सत दी है, जबकि इबादत में नहीं दी है। देखो वयुक़बल फ़िल मुआमिलात क़ौल फासिक और कबूल किया जाएगा मुआमिलात में फासिक का कौल, वला युक़बल फ़ी अख़बार दियानात और नहीं कबूल किया जाएगा दियानात के खबरों में इल्ला क़ौलुल अदल मगर आदिल शख्स का कौल। आगे यहाँ पर जो है वो पर्दे का हुक्म जो है वो शुरू हो रहे हैं। पर्दे जो है ये है कि वो एक मर्द जो है, एक मर्द जो है औरत को जो है, अच्छा ये पहले ये बात जान लें कि एक औरत को जो है वो क्या होता है, पूरा बदन सतर है सिवाय पाँव और चेहरे के। आलिमार के लिए पाँव और चेहरे जो है, अगर आजकल फितने का दौर है ना, तो अगर आज देखा जाए तो पाँव और हाथों उसको भी छुपाना चाहिए, यानी दस्ताने पहनना चाहिए और इस तरह जुराबी जो है पहनना चाहिए। आप लोग भी आलिमात हो, समझ आ गए, तो आप लोग भी इस पर पाबंदी करो, यानी पर्दे का बहुत खूब एहतमाम कर लो। अगरचे आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आलिमात का जो है मुहर तो लगता है ना। तो बहरहाल औरतों के लिए पूरा बदन जो है वो क्या होता है ये सतर में दाखिल है, क्योंकि हुजूर हदीस कुरान में क्या आता है, ए नबी अपने औरतों से, अपनी बेटियों से, मुसलमान की औरत से कह दीजिए कि वो अपनी चादरें चेहरे पर नीचे तक लटकाया करें। लोग कहते हैं कि दिल का पर्दा होता है, दिल का पर्दा कहाँ होता है, ये नमाज आप ना पढ़े, दिल का जो है वो क्या होता है, इरादा इबादत होता है ना, दिल हर वक्त जो है वो आपका दिल जो है इतना तकवादार है कि वो अल्लाह तबारक तआला के साथ बातें करे, तो फिर नमाज भी ना पढ़े, ज़कात भी ना करे, ये बाकी मामलात भी ना करे। जब दिल का पर्दा है, हर चीज जो है दिल के साथ, बस अमाल ऐसे होते हैं जो जाहिरन किया जाता है, सही है। तो ये चेहरे भी जो है ना, वो पर्दे भी जो है वो जाहिरन होता है। बहरहाल क्या होता है इस आयात से साफ मालूम होता है कि आजाद औरत का मुकम्मल बदन जो है वो क्या होता है, पर्दे में। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जो है, अगरचे वो चेहरे की जवाज का साबित होता है, लेकिन वो वो ज़ाइफ है, और साथ साथ में जो है वो आजकल जो है शवाफी का भी यही फतवा है कि मुंह का छुपाना वाजिब है फितने के दौर में। अब एक मर्द जो है वो, यानी एक अजनबी औरत जो है, अजनबी मर्द जो है अजनबी औरत से कितना पर्दा करेगा, तो वो तो मैंने बता दिया कि वो पूरा पर्दा करेगा, सही है, पूरा पर्दा, चेहरे और हथेलियों के अलावा। वो तो एक मुफ्ताबी गैर मुफ्ताबी कौल के मुताबिक चेहरा भी शामिल है, लेकिन चूंकि आजकल फितने के दौर है, तो इसी वजह से वो किस चीज के अंदर होगा, हिजाब के अंदर दाखिल होगा। देखो वला यजूज़ु अन यंज़ुर अर्रजुल मिनल अजनबिय्यति, अब जायज़ नहीं है कि कोई आदमी देखे अजनबी औरत को, इल्ला वजहा व कफ़ैहि, मगर किसी उसके चेहरे को और उसके हथेली को, किस चीज़ की वजह से, फ़इन कान ला यामनु मिन अश-शहवति, बस अगर मुम यानी क्या हो, अमन में ना हो,
हिफाजत में ना हो, उसकी तरफ शहवत से लम यंजुर इला वजहिहा, तो उसके चेहरे की तरफ भी ना देखे इल्ला लिहाजत, मगर हाजत की वजह से। वो हाजत किस तरह हो सकती है कि अगर एक औरत जो है वो काजी के पास चली जाती है यानी वो गवाही देने के लिए, तो गवाही देने के लिए जो है औरत का चेहरा देखना भी जरूरी होता है। तो अगर वो नहीं देखेगा तो यानी आगे मसाइल में फैसला करने में मुश्किल होगा ना। तो इसी वजह से जो है काजी के लिए जो है उसके चेहरे की तरफ देखना जायज होगा। अगर किस चीज का शहवत का खौफ भी हो तब भी जो है देखना जरूरी होगा, क्योंकि आगे जो है लोगों के हुकूक का मसला है। वयजुज़ुल काजी, और जायज काजी की इजारात जब वो इरादा करे अन यहकुम अलैहा कि वो उस पर हुक्म लगा दे, वली शाहिद, और शाहिद के लिए इजारात शहादत अलैहा जब वो इरादा करे गवाही का उस पर, अन नज़र इला वजही, तो वो उसके चेहरे की तरफ देखा। व इन खौफ, अगर चाहिए डर तो अन यश्तहिया कि उसको शहवत आ जाए, तब भी देखना जरूरी होगा। आगे फरमाते हैं तबीब वाला मसला है कि पहले तो बेहतर ये है औरतों के लिए वो अगर कोई ऐसा मसला हो बदन वगैरह का देखना हो तो डॉक्टर के पास हो, तो फिर जो है इसका इंतखाब जो है औरतों के साथ कर ले, यानी लेडी डॉक्टर हो तो उसके साथ जो है वो बात कर। लेकिन अगर उसकी मुमकिन ना हो तो फिर जो है अशद जरूर है डॉक्टर के पास हो, क्या मर्द डॉक्टर के पास देखना, तो फिर जो है सिर्फ वही जगह देखकर जहाँ पर बीमारी हो, उसके अलावा देखना जो है जायज नहीं होगा। वयजुज़ु लित्तबीब, और जायज तबीब के लिए अन यंज़ुर इला मौज़िल मरज़ मिनहा, कि ये देखे औरत की मर्ज की जगह को, वयंज़ुरु रजुल मिन, अच्छा ये हो गया, ऐसे ही हो गया। आगे फरमाते हैं कि एक औरत से इस तरह मर्द से कितना पर्दा है, तो मर्द का पर्दा जो है वो तो एक आजाद औरत का पूरा बदन पर्दा है ना, और एक मर्द का पर्दा जो है वो ये है नाफ से लेकर घुटने समेत, घुटने भी शामिल है, समझा के नाफ के नीचे से लेकर घुटने समेत जो है वो क्या उसका पर्दा है। तो अब एक मर्द जो है दूसरी मर्द की तरफ भी इन आज़ा या नाफ से लेकर घुटने तक जो है वो नहीं देखेगा, और इस तरह एक औरत जो है एक औरत जो है वो भी मर्द की तरफ जो है इनके दरमियान नहीं देखेगा। इसके अलावा जो है उसके क्या हो चेहरा ना अगर फितना हो तो फिर तो नहीं दे सकती, क्योंकि हदीस में कुरान में क्या वयहफ़ुज़्न अब्सारहुन्ना, कि अपने आंखों को झुका ले, तो इसी वजह से उसका भी देखना जायज नहीं होगा। और इसलिए कि ये इसको बदनजरी कहते हैं ना, बदनजरी की जो है बहुत ज्यादा नुकसान, तकरीबन 14 नुकसानात होते हैं। तो इसकी जो है इनमें से एक नुकसान में एक बताती हूँ कि इससे जो है वो क्या होता है, इससे ये क्या ये हाफिजा जो है ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ये हमारे जवानों के इस तरह हमारे बच्चों की आज हाफिजे क्यों कमजोर है, क्योंकि वो एक गलत जगहों की तरफ देखते हैं, ऐसे हो गया। तो इसकी वजह से जो है हाफिजे पर ये बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखो वयंज़ुरु रजुलु मिन अर्रजुल इला जमीअ बदनि इला मा बैन सुर्रतिहि इला रुकबतिहि, कि एक मर्द को दूसरे मर्द की तरफ जो है उसका तमाम बदन की तरफ देखना जायज है, इल्ला मा बैन सुर्रतिहि इला रुकबतिहि, सिवाय नाक और घुटने के दरमियान जो है वो देखना जायज है। आज जो है उन लोगों पर रद्द हो रहा है, यानी उन खिलाड़ियों पर उन लोगों पर जो है रद्द हो रहा है जो कि घुटने से ऊपर तक जो है वो क्या होता है निकर वगैरह जो है वो पहन लेते हैं, समझ आते, ये छोटा सा जो है वो पैंट पहन लेते हैं, तो उसकी तरफ भी देखना जायज नहीं है यार। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि औरत के लिए कितना जायज है, तो कहते हैं कि जितना एक मर्द से पर्दा होता है उतना ही एक औरत के लिए जो है मर्द से पर्दा होता है। लेकिन मैं कहूँ कि उसके चेहरे की तरफ भी दे, हाँ खासकर जिन लोगों का दाढ़ियां नहीं होती है, समझा के, तो खामखा जो है अपने नजरों को गंदा करना है, इस तरह से अपने हाफिजे को क्या करना है कमजोर करे, इसी वजह से उसकी तरफ ना देखा करे। वयजुज़ु लिलमरअति, और जायज़ औरत उनके लिए अन तंज़ुर कि वो देखे मिन अर्रजुल, और मत कि इला मा यंज़ुर इलैहि रजुल, यानी उन आज़ा की तरफ देखे जिन आज़ा की तरफ वो एक मर्द के लिए दूसरे मर्द का देखना जायज है। अब सवाल होता है कि एक औरत की तरफ कितना देख सकती है, तो वही वाली बात हो कि एक औरत दूसरी की तरफ उतनी ही वही आजाद देख सकती है जो एक मर्द की तरफ वो देख सकता है, यानी नाव से लेकर नीचे घुटने तक को। औरत तो कहती है ना आप भी तो इस देखने में क्या है, गलत बात है, ऐसे ही हो गया। खासकर ब्यूटी पार्लर लमान और हफीज अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसे जगहों पर जाने से, हमें अमन और हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वतंजुरुल मरअतु मिनल मरअति, और देख सकती है और दूसरी औरत की तरफ हो इला मा यजूज़ु, यानी इतने उस बदन की तरफ देखना जायज है, मा यजूज़ु लिरजुल, एक मर्द के लिए जायज है, यंजुरु इलैहि मिनर रजुल, जो दूसरे मर्द की तरफ हो देखिए, यानी जो मर्द के लिए जितना आजाद देखना जायज है वही था, यानी सीने की तरफ, पेट की तरफ, पीठ की तरफ हो और सर की तरफ देखना जायज है, मर्द औरत का भी औरत के, और लेकिन औरत की तरफ देखना जो है वो मातहत सुरा, यानी नाफ
नीचे से लेकर घुटने सब में जो है देखना जायज़ नहीं है। वयंज़ुरु रजुलु मिन अमति allati तहल्लु लहु व ज़ौजतिही ला फ़र्जिही, ज़ाहिर सी बात है मर्द जो है वो अपनी बीवी को इस तरह अपनी बांदी को देखना भी जायज़ है, क्योंकि जब उस तमाम बदन को जब छूना भी जायज़ है लेकिन देखना भी जायज़ है, लेकिन बेहतर नहीं है। ऐसे है जब भी मुबाशरत होती है मियाँ बीवी के दरमियान, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो शर्मगाह की तरफ नहीं देखे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान है कि कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शर्मगाह की तरफ नहीं देखा है। तो ये भी एक हया में आता है ना। वयंज़ुरु रजुलु मिन, वरना जायज़ है वयंज़ुरु रजुलु मिन अमतिही, और मर्द देख सकते हैं अपनी उस बांदी को अल्लती तहिल्लुहु, जिसके लिए वो जो उसके लिए हलाल हो, व ज़ौजतिही, और अपने बीवी की तरफ इला फर्जी, और उसकी शर्मगाह की तरफ भी देख सकता है। और इस तरह ज़वातुल अरहम यानी मुहर्रमात अबदिया, जो एक मर्द के लिए जो है जिसके साथ हमेशा हमेशा के लिए हराम है, तो उसके सर और सीने और इस तरह पेंडली और इस तरह बाजू वगैरह देखना जायज है, लेकिन उसके पेट की तरफ, उसकी रान की तरफ और इस तरह उसके पीठ की तरफ जो है देखना जायज नहीं है, क्योंकि पीठ भी जो है ज़वातुल अरहम में किस चीज में आता है, सतर में आता है। वयंज़ुरु रजुलु मिन ज़वाति महारिमिही इलल वजहि वर्रअसि वस्सद्रि वस्साक़ैनि वलअज़दैनि वला यंज़ुरु इला ज़हरिहा व बतनिहा व फ़ख़्दिहा। वो यहाँ देख सकता है आदमी में ज़वात महारी में अपने ज़वात महार ज़ीरहम महरम की तरफ, इल्ला वजह उसकी चेहरे की तरफ, वर्रासी और इसकी सर की तरफ, वस्सद्र उसकी सीने की तरफ, वस्साक़ैन और उसकी पेंडली की तरफ, वलअज़दैन उसकी बाजू की तरफ, वला यंज़ुरु इला ज़हरिहा लेकिन ना देखे उसकी पीठ की तरफ, व बतनिहा और उसकी पेट की तरफ, व फ़ख़्दिहा और उसकी रान की तरफ। वला बास बि अन यमस्स मा जाज़ लहु अन यंज़ुर इलैहा मिन्हा, और यानी जिन अज़ा की तरफ देखना जायज़ है उनका चुना भी जायज़ है, क्योंकि कभी कभार जो है आपकी माँ बीमार हो यानी या जो है बहन बीमार हो, तो आप उसको पकड़ लेते हो, कभी कभार गोद में भी उठा लेते हो, तो यानी उन अज़ा का चुना भी जो है इस शख्स के लिए शहवत के बगैर जरूरत की वजह से जो है जायज़ है, जिसकी तरफ देखना जायज़ है। वला बासर कोई हर्ज नहीं भी अयमस्सा मा जाज़ा अयमुस्मा कि वो क्या करे, छू ले मा उस चीज को जाज़ लहू कि जिसकी तरफ उसका देखना, यंज़ुर इलैहा मिन्हा जिसकी तरफ उन अज़ा में से देखना जायज़ है, उसका चुना भी जायज़ है, लेकिन खतरा ना हो तब। वयंज़ुरु रजुलु मिन ममलूकी गैरि ला मा यजूज़ु ला यंज़ुर इलैहि मिन ज़वाति महारिमी, मर्द अपनी ज़ी रहम औरत का जितना बदन देख सकता है उतना ही बदन दूसरी की बांदी का देख सकता है। सही हो गया, यानी चूंकि बांदी का जो है आजाद औरत का तो मैंने बता दिया ना, पूरा बदन जो है वो सतर में है, लेकिन बांदी का पूरा बदन जो है वो सतर में नहीं है, बल्कि उसका जो है वो क्या है, नाक से लेकर घुटने तक, और इस तरह उसका पीठ और रान और उसका पेट जो है, यानी एक ज़वात मुहर्रमात अबदिया का जो सतर है यो एक को अपने महरम औरत के, अपने महरम मर्द के लिए, तो वही हुक्म जो है उस बांदी के लिए, क्योंकि बांदी जो है बार बार आका की खिदमत में बाहर जाएगी ना, तो इसी वजह से उसका जो है वो क्या होता है जवाज, इसी वजह से इसके लिए रुखसत भी है। वयंज़ुरु रजुलु मिन ममलूकी, और देख सकता है आदमी दूसरी की बांदी को, मिन ममलूकी गैरी दूसरी बांदी को, इला मा यजूज़ु लहू यानी उन बदन का वो हिस्सा जितना देखना जाए, यंज़ुरु इलैहि मिन ज़वाति महारिमी यानी अपनी ज़ीरहम औरतों का जिन आज़ा का देखना जायज़ है, वही आज़ा बांदी के लिए है, और बांदी के उन आज़ा की तरफ एक गैर आका जो है उसका देखना जायज़ है। मेरे ख्याल से ये काफी है, वरना मुताला तो पूरा किया था, लेकिन चलो अब जो है वो तफसीरुल मंतिक निकाले, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म कर लेते हैं। आज पीर भी है तो अमाल भी अभी उठाए जाएंगे आसमान की तरफ। तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारी भी थोड़ी बहुत तो कबूलियत का दर्जा आ जाए। तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने जो है तजरिबियात में पढ़ा था कि यानी ये क्या होता है, क़ियास के एतबार से 5 किस्में आती है ना, इसको सनाअत खम्स कहते हैं। क़ियास बुरहानी, क़ियास जदली, क़ियास ख़िताबी, क़ियास शारी, क़ियास सफ़ी। तो क़ियास बदहियात की हमने 5 किस्में पढ़ी थी। उनमें से जो है एक मुतवातिरात, क्या है मुतवातिरात है वो क़ज़िया कि इनकी यकीन होने का हुक्म ऐसी जमात है, यानी मुतवातिरात कहते हैं कि वो चीज आपने खुद तो नहीं देखा है, लेकिन आप कोई इतने लोगों ने ये वो बात पहुंचाई है कि आप जो है वो क्या है, आपका यकीन हो गया कि हाँ वो है। जैसे हमने मक्का, अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, हरमैन शरीफैन हमने नहीं देखा है, आप लोगों ने देखा है लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है, अल्लाह तबारक तआला नसीब कर ले। तो हरमैन शरीफैन का देखना ये हमें कितनी, यानी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हरमैन शरीफैन जो है वो अरब में मौजूद है, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जो है वो अरब में मौजूद है, क्योंकि इतने लोगों ने ये बात मुझ तक
पहुंच है कि मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि ये हरमैन शरीफैन जो है वो अरब में मौजूद है, तो इसको कहते हैं मुतवातिरात, तो क़ियास है। वो कज़िया है कि इनके यकीन होने का हुक्म ऐसी जमात के मुतफर्रिक खबरों से किया गया हो कि इन सब खबरों को झूठ नहीं है सर। जैसे ये कज़िया, कलकत्ता एक बड़ा शहर है, इसका यकीन होना हमको ऐसी खबरों से मालूम है कि इन खबरों को हम झूठ नहीं कह सकते। कलकत्ता बड़ा शहर है, हमने नहीं देखा कि बड़ा शहर है कि नहीं, लेकिन लोगों ने हम तक ये बात पहुंचाई तो हमें इसके क्या कहते हैं, हमें मालूम हो और यकीन भी हो गया। अच्छा, क़ियास सराआत में से जो है एक तो हमने क़ियास बुरहान पढ़ लिया, जिसकी 5 किस्में हमने पढ़ ली है, समझ आ गए। क़ियास बदियही समझ आया ना, क़ियास बुरहान हमने पढ़ लिया। अब है क़ियास जदली, वो क़ियास जो मुकद्दमाती मशहूर है, किसी फरीक की माने हुई मुकद्दमात से बना हो, ख्वाह वो सही या गलत हो। यानी किसी एक का अकीदा हो गया, उसने कुछ मुकद्दमात तो मिला लिए है और उससे जो है एक नतीजा निकाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नतीजा सही भी हो, यानी हकीकतन भी सही हो। जैसे हिंदू का ये अकीदा है कि जानदार का ज़बह करना बुरा है, तो ये एक सुगरा हो गया, और हर बुरा काम वाजिब तर्क है, तो ये भी क्या हो गया, दूसरा कुबरा हो गया। हमने इन दोनों को मिलाया तो इससे ये निकलता है नतीजा कि जानदार का ज़बह करना वाजिब तर्क है। अब जानदार का ज़बह करना वाजिब तर्क है, ये तो क्या है, मुकद्दमाती मशहूरा से हमने मिला तो लिया, लेकिन ये जो है कतअन सही नहीं है, गलत है, ये किसी और का अकीदा है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। देखो, क़ियास जदली वो क़ियास जो मुकद्दमात मशहूर है या किसी फरीक के मानी हुई मुकद्दमात से बना हुआ, ख्वाह वो सही हो या गलत। जैसे हिंदू का कौल है कि जानदार का ज़बह करना बुरा है और हर बुरा काम जो है वाजिब तर्क है, पर जानदार का ज़बह करना भी वाजिब तर्क है। क़ियासी ख़त्वाबी वो कहते हैं कि गालिब गुमान ये है कि वो सही होगा। वो क़ियास हो जो ऐसे मुकद्दमात से मुरक्कब हो कि उनसे गालिब गुमान सही होने का है। जैसे ज़राअत नफ़ा की शय है और हर नफ़ा की शय अपनाने के काबिल है, बस ज़राअत भी अपनाने के काबिल है। ज़राअत नफ़ा की शय है, ये एक मुकद्दमा हो गया, हर नफ़ा की शय अपनाने के काबिल है, ये 2 मुकद्दमा है। तो नफ़ा को हमने काट लिया, बस ज़राअत अपनाने के काबिल है। अब ये गालिब गुमान ये है कि ये सही है, समझ आया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दुनियावी फ़ायदा है। क़ियास शरई वो क़ियास है जो ऐसे मुकद्दमात से मुरक्कब है जिनका मंशा ख़याली महज़ हो, ख्वाह वो हकीकत में सादिक हो या काज़िब हो। यानी सिर्फ ख़याल हो ना, क्या होते हैं, ख़याल हो, यानी वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चे भी हो और झूठे, ये वैसे वहम हो, ख़याल हो। जैसे कोई कहे ज़ैद चाँद है और हर चाँद रोशन है, ज़ैद चाँद है ये एक मुकद्दमा हो गया, और हर चाँद रोशन ये दूसरा मुकद्दमा हो गया। हमने इन दोनों को मिलाया, चाँद को हमने काट दिया, बस ज़ैद रोशन है। ज़ैद वाक़ई रोशन है? नहीं है, ज़ैद वाक़ई रोशन नहीं है, समझ आए? लेकिन ये ऐसा वहम ख़याल है, समझ आए? जैसे ग़ज़ल वग़ैरह में जो है एक महबूबा को बड़ा चढ़ाकर बयान कर रहे, तो इस तरह ये भी क़ियास शायरी है, शेर की मानी में है ना। क़ियास सिर्फ सतवी वो क़ियास है जैसे मुकद्दमात से मुरक्कब जो महज़ वहमी और झूठे हो। वहम भी और साथ में जो है वहाँ पर या सादिक और काज़िब का एहतिमाल, तो यहाँ पर कोई भी एहतिमाल नहीं, वाक़ई झूठी है। जैसे हर मौजूदा शय इशारे के काबिल है, हर मौजूदा शय इशारे के काबिल है, और जो इशारे के काबिल है वो जिस्म भी है। यानी हर मौजूदा शय जो है वो इशारे के काबिल होता है, हर शय इशारे के काबिल जो होता है वो जिस्म वाला होता है। पर बस हर मौजूदा शय बस हर मौजूदा जो है जिस्म वाला है। हर मौजूदा शय जिस्म वाला, हालाँकि हर मौजूदा शय तो जो है जिस्म वाला हवा है, वो तुम से उसका जिस्म नहीं है। तो इसी वजह से ये भ्रम होता है। जैसे कोई घोड़े की तस्वीर की निस्बत ये है कि ये घोड़ा है, और हर घोड़ा हिनहिनाता है, बस ये तस्वीर भी हिनहिनाता है, ये गलत है ना? तो इस वजह से कहते हैं कि इन तमाम क़ियासात में सिर्फ बुरहान जो है ये काबिल मोतबर है, बाकी सब जो है ये क्या है, वहम है, इस पर कोई भी झूठ हो, इसका पर कोई भी यकीन का फ़ायदा नहीं देता है। बस ये भी हिनहिनाने है, मोतबर इनमें से बुरहान है। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ व यहदिस सबील। अच्छा, ये कहते हैं फ़हरिस्त साबिक़ा इस्तिलाहात वाजिबुल हिफ्ज़, यानी क़ियास इक़्तिरानी, इस्तिस्नाई, अस्ग़र, अकबर, मुक़द्दमा, सुग़रा, कुबरा, हद औसत, शिक्ल अव्वल, शिक्ल सानी, शिक्ल सालिस, शिक्ल राबि, इस्तिक़रा, तमसील, दलील इल्मी, दलील इन्नी, बुरहान, अवलियात, फ़ितरियात, हदसियात, मुशाहिदात, तजरिबियात, मुतवातिरात, क़ियास जदली, क़ियास ख़त्वाबी, क़ियास शरई, क़ियास सस्ती। ये हमने जो है यानी क्या होता है दूसरे सबक में जो है हमने पढ़ लिया, बहस नंबर 2 में हमने पढ़ लिया। आप लोग उसको अच्छी खास याद कर और जो है इंशाल्लाह पेपर में आएगा। अभी सोच नहीं है कि कितना पेपर में दूंगी, लेकिन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमसे जो है तफसीरुल मंतक के पढ़ने और पढ़ाने को कबूल करे, और जो भी हमसे जो है सुनने में या पढ़ने में या समझने में जो भी गलती की, अल्लाह ताला अपने फजल और करम से जो है माफ़ फरमाए। बाकी अगर कोई आप लोगों का कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, और इसी पर इक्तिफा करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है?
نہیں ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.